Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. The next application of the Lagrange's equation is the Atwood machine. Atwood machine is simply a simple mechanical system which involves holonomic constants as shown in figure. Here are two masses M1 and M2 which are connected through a string of length L and which crosses over a fixed pulley. The pulley is assumed to be massless and from the axle of the pulley we are measuring the distances. M1 is at a distance L minus Q1 and M2 mass is at a distance Q1. T represents the tension in the spring, mass is acting downward, M1G and second M2G. In this case, we have only 1 degree of freedom because the masses can only move along vertical axis. अगर हम ये assume करें कि M2 mass is greater than M1, then this mass will move upward and this mass will move downward. So we have only 1 degree of freedom. The Lagrange's equation is, we are using the Lagrange equation for the conservative system because the system is conservative. Time derivative of partial L by partial Qj dot minus partial L by partial Qj is equal to 0. Since we have 1 degree of freedom, so J has value 1. So that we can write Lagrange's equation as time derivative of partial L by partial Q1 dot minus partial L by partial Q1 equal to 0. Here Lagrangian L is defined by kinetic energy T minus potential energy V. We have to find out the value of Lagrangian L. For this purpose, we will find the kinetic energy of the system as well as the potential energy of the system. So kinetic energy is equal to the kinetic energy of first particle T1 plus kinetic energy of second particle T2, and this can be written as half M1 V1 square plus half M2 V2 square. V1 is the velocity of first particle and V2 is the velocity of the second particle. As we see in the figure, the mass M1 covers a distance L minus Q. L minus Q1 is covering a distance L minus Q1. So its velocity will be the time derivative of L minus Q1. L is a constant because it is the length of the string or the rope with which mass M1 and M2 are tied, and it is inextensible. So dL by dt will become 0 and minus dq1 by dt, which can be written as minus q1 dot. So velocity of first particle is minus q1 dot, and similarly the velocity of second particle M2 is time derivative of q1. It is dq1 by dt or q1 dot. तो V1 की जगह हम ये माइनस Q1 डॉट यहाँ पुट करेंगे, V2 की जगह Q1 डॉट इसमें पुट करके हमारे पास जो किनेटिक एनर्जी है, इट विल बिकम T is equal to, kinetic energy is equal to half M1 Q1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ M2 Q1 डॉट का स्क्वायर. और ये माइनस Q1 डॉट था,
माइनस का जब स्केयर लेंगे वो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए दोनों टर्म्स प्लस की आएंगी। Similarly, potential energy V is equal to V1 plus V2 in potential energy of first particle plus potential energy of second particle, and this is V is equal to mgh, to m1 gh1 for mass m1 and m2 gh2 for mass m2. In the first case, h1 is the distance L minus q1, where h2 is the distance h2 equal to q1. So putting values, we have V is equal to m1g L minus q1 plus m2g q1. So this is the kinetic energy and this is the potential energy. Now we find the Lagrangian. L is equal to T minus V. Half m1 q1 dot square plus half m2 q1 dot square minus m1g L minus q1 plus m2g q1. So ये 1/2 पहले दोनों टर्म में से कॉमन है, q1 डॉट स्क्वायर भी कॉमन है, तो हाफ m1 प्लस m2 q1 डॉट स्क्वायर। इसी तरह से ये g q1 यहाँ से कॉमन है, तो वी कैन राइट m1 माइनस m2 माइनस m1g L। इस माइनस की वजह से ये टर्म माइनस की होगी, ये प्लस की हो जाएगी और ये भी माइनस की होगी। तो ये m1g L ये माइनस की टर्म है, फिर माइनस m1 माइनस माइनस प्लस m1g q1 और फिर माइनस m2g q1। तो g q1 कॉमन निकालने से बाकी m1 माइनस m2 बचेगा। अब हमारे पास लैग्रेंजियन आ गया। अब हमने उसमें वैल्यू, इसको लैग्रेंजी इक्वेशन को सॉल्व करना है। और लैग्रेंजी इक्वेशन हमारे पास ये है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल L बाई पार्शियल Q1 डॉट, J को हमने 1 रखा हुआ है, Q1 डॉट माइनस पार्शियल L बाई पार्शियल Q1 इक्वल टू 0। तो ये पार्शियल L बाई पार्शियल Q1 हमने फाइंड आउट करना, फिर ये पार्शियल L बाई पार्शियल Q1 डॉट फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है Q1 डॉट के लिहाज से L का, तो पार्शियल L बाई पार्शियल Q1 इज इक्वल टू ये 1/2 बाहर आ गया, m1 प्लस m2 ये भी कांस्टेंट है, ये भी डेरिवेटिव से बाहर आ गया, Q1 डॉट का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव का स्क्वायर है तो 2Q1 डॉट ये है। इस तरह से इस टर्म में Q1 डॉट नहीं है, ना ही इस टर्म में Q1 डॉट है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए Q1 डॉट के अलावा बाकी टर्म कांस्टेंट्स कंसीडर होंगे, तो फिर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों का डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास जस्ट बचेगा Q1 डॉट टू m1 प्लस m2। इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें इसी का, तो यहाँ पे इसका टाइम डेरिवेटिव आएगा, ये m1 प्लस m2 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और इसका Q1 डॉट का टाइम डेरिवेटिव जो है ये Q1 डबल डॉट बन जाएगा। तो ये डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल L बाई पार्शियल Q1 डॉट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 Q1 डबल डॉट। अब L का Q1 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट टर्म में Q1 डॉट है, Q1 नहीं है, तो फर्स्ट टर्म से डेरिवेटिव 0 आएगा, और यहाँ से ये G और m1 माइनस m2 इसको बाहर निकाल लेंगे, तो Q1 के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा, और यहाँ Q1 नहीं है तो इस टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा। हमारे पास ये पार्शियल L बाई पार्शियल Q1 इज इक्वल टू आया G m1 माइनस m2, और इस टर्म का डेरिवेटिव 1, इसका भी 0 और इस टर्म का भी 0, तो जस्ट G m1 माइनस m2। अब हम ये वैल्यू पुट कर दें उसमें लैग्रेंजी इक्वेशन के अंदर, हमारे पास ये आ गया m1 प्लस m2 Q1 डबल डॉट माइनस G m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, यानी ये टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल L बाई पार्शियल Q1 डॉट माइनस पार्शियल L बाई पार्शियल Q1, तो दोनों वैल्यूज पुट की इक्वल टू 0। अब इसमें सेकंड टर्म जो है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये माइनस इधर आगे प्लस हो गए,
और यहाँ से फिर Q1 डबल डॉट की वैल्यू निकालेंगे तो G M1 minus M2 divided by this term M1 plus M2. So this equation is the equation of motion for the Atwood machine, which gives the acceleration of the, in terms of Cartesian coordinates. If we let Q1 is equal to X1, then Q1 X1 dot is equal to Q1 dot, and Q1 double dot will be X1 double dot. So that X1 double dot is equal to G M1 minus M2 और M1 plus M2. इसका अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी, तो इसका इंटीग्रल लेंगे टाइम के लिहाज से, तो इससे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी का भी एक दफ़ा फिर इंटीग्रल टाइम इंटीग्रल लेंगे तो उससे पोजीशन हम निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है Lagrange equation for a simple pendulum. Find out the equation of motion for a simple pendulum using Lagrange equations. या हम Lagrange equation को इस्तेमाल करते हुए सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी इस केस में सिंगल पार्ट ये देखा है कि L, ये सिंपल पेंडुलम है, मास M जो कि एक स्ट्रिंग L के साथ, स्ट्रिंग जो है वो इन एक्सटेंसिबल है कि ये इसकी लेंथ वो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, और ये रोटेट कर रहा है एक्स वाई एक्सिस में, वाइब्रेट कर रहा है। ये नीचे जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, इसको हमने रेफरेंस लाइन कंसीडर किया है, तो इसका मैक्सिमम हाइट ये है, तो इसके लिए जो h की वैल्यू है वो ये होगी। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से लेंगे, ये जो वैल्यू है O से C तक वो x है, और C से यहाँ तक मास तक ये y है, इसका कोऑर्डिनेट। तो ये O, C और M एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, जिसमें x फिर बेस होगा, ये बेस होगा क्योंकि इसके ऊपर एंगल है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, y परपेंडिकुलर होगा, और x जो है वो बेस के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे भी जो है इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, क्योंकि इसने सिर्फ एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट करना है। तो यानी जे की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो जो क्यू जे डॉट है, जे की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास Q1 डॉट बनेगा। हम फर्ज कर रहे हैं कि जो Q1 है वो थीटा है, क्योंकि जो वेरिएशन होगी एंगल में थीटा में होगी। ये अगर इधर को आएगा तो एंगल कम होगा, यहाँ आगे एंगल 0 हो जाएगा, फिर एंगल यानी एंगल जो है वो कम ज़्यादा होगा। तो हमारा वेरिएबल जो है वो थीटा है इस केस में, तो हम Qj को हम थीटा कहेंगे, तो Qj डॉट थीटा डॉट होगा। तो हमारे पास जो लैग्रेंज इक्वेशन बनेगी, यहाँ फिर हम लैग्रेंज इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल L बाई पार्शियल, यहाँ Qj डॉट था उसकी जगह अब आ गया थीटा डॉट, और माइनस पार्शियल L बाई पार्शियल Qj था, तो Qj की जगह भी थीटा हमने ले लिया। तो ये बन गया टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल L बाई पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल L बाई पार्शियल थीटा इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी पहले हम लैग्रेंजियन की वैल्यू L की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस L की वैल्यू से पार्शियल L बाई पार्शियल थीटा निकालेंगे, या फिर ये डेरिवेटिव निकालेंगे। स्टार्ट हम उसी तरह से करेंगे, क्योंकि लैग्रेंजियन हम जानते हैं किनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम किनेटिक एनर्जी निकालते हैं, यानी हाफ mv²। अब v dr/dt होता है, वेलोसिटी dr/dt, जिसको हम r डॉट कहते हैं। तो ये फिर v की जगह r डॉट पुट किया हमने, तो ये हाफ m r डॉट का स्क्वायर बन गया। अगर हमारे पास r xi प्लस yj हो, तो इसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड r डॉट स्क्वायर विल बी x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, क्योंकि इसका r टाइम डेरिवेटिव लेंगे, r डॉट बनेगा इसका टाइम डेरिवेटिव x का dx/dt x डॉट और dy बाई dt y डॉट। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा r डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, यानी किनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस
वाई डॉट स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ हमने एक्स डॉट वाई डॉट की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड थीटा डॉट। उसके लिए हमने इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ये ओ सी और मास तक, ये वाली मैंने अभी बताया था कि ये हमारे पास बेस है, तो इट विल बी एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ये जो परपेंडिकुलर है वाई, तो वाई इज इक्वल टू एल साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू एल साइन थीटा आता है हमारे पास इस ट्रायंगल से। तो वहां से हमने x इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी टी, एल डेरिवेटिव से बाहर आएगा तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो इट मीन्स कि डी थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी टी, तो दिस विल बिकम माइनस एल, ये डी थीटा ओवर थीटा डी टी, इसको हम थीटा डॉट कहेंगे इनटू साइन थीटा, तो माइनस एल थीटा डॉट साइन थीटा आ जाएगा। सेकंड था y इज इक्वल टू एल साइन थीटा, उसका डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और थीटा का थीटा डॉट, तो एल थीटा डॉट कॉस थीटा, तो एक्स डॉट हमारे पास आ गया माइनस एल थीटा डॉट साइन थीटा और वाई डॉट आ गया एल थीटा डॉट कॉस, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का स्क्वायर प्लस, और फिर ये एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं दोनों टर्म में एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर मौजूद है, ये कॉमन निकाल लें, यहाँ हमने दोनों को ये वैल्यू पुट कर दिया, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर की हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन है, ये कॉमन निकाल लिया, तो 1/2m एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, बाकी बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जानते हैं हम कि ये ज्योमेट्री में ये 1 के इक्वल होता है। तो सो हमारे पास टी किनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, यानी V इज इक्वल टू एम जी एच और एम जी इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ सी। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये H की वैल्यू है, ये टोटल O से A, इसमें से ये माइनस कर दें, टोटल O से A तक ये L की वैल्यू है, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को शो कर रहा है ये O से A, तो इसमें से ये O C माइनस करें जो X है, तो ये हमारे पास आएगा L माइनस X, H जो है H इज इक्वल टू L माइनस X आएगा, ओ ए एल की इक्वल है और ओ सी एक्स इन एल कॉस थीटा, तो ये हमारे पास एल माइनस एक्स या एल की एक्स की जगह एल कॉस थीटा, तो सो वी इज इक्वल टू एम जी एल माइनस एक्स यानी एल कॉस थीटा, एल कॉमन है दोनों में से, तो एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये लैग्रेंजियन किनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी ये है हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, तो हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया लैग्रेंजियन। तो लैग्रेंजियन से अब हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, पहले इसका थीटा के लिहाज से, अब फिर थीटा डॉट के लिहाज से, फिर उसका टाइम डेरिवेटिव। ओके जी, ये डेरिवेटिव निकाल के हम लैग्रेंजियन इक्वेशन के अंदर इस वैल्यूज को पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहां से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। पहले जो है वो डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट इस टर्म का, तो इसमें ये 1/2 और m और l स्क्वायर, 1/2 m l स्क्वायर ये कांस्टेंट होते हुए डेरिवेटिव से बाहर रहेंगे, तो डेरिवेटिव सिर्फ इसका आएगा थीटा डॉट स्क्वायर का, क्योंकि थीटा डॉट के लिहाज से है तो जस्ट पावर रूल से इसका डेट बनेगा, यानी 2 थीटा डॉट, 2 थीटा डॉट यानी वो 2 जो है इस डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल होगा, तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट बचेगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ये जो सेकंड टर्म है इसमें थीटा तो है लेकिन थीटा डॉट नहीं है, इसलिए ये टर्म कांस्टेंट होंगी, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका फर्दर टाइम डेरिवेटिव ले लें, तो डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल पे पार्शियल थीटा डॉट,
तो इसका टाइम डेरिवेटिव तो m और l स्क्वायर डेरिवेटिव से बाहर आएंगे, थीटा डॉट का एक और टाइम डेरिवेटिव उसको थीटा डबल डॉट बना देगा। अब इसका हम थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव पार्शियल l बाई पार्शियल थीटा लेंगे। फर्स्ट टर्म जो है इसकी वजह से जो है डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये थीटा है तो एम जी एल, एक माइनस एम जी एल कॉन्स्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हमारे पास ये आएगा कि पार्शियल बाई पार्शियल 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा, माइनस एम जी एल पार्शियल बाई पार्शियल थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट टर्म का 0 है, माइनस एम जी एल 1 का भी 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस एम जी एल इंटू साइन थीटा, पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा की ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसको दोनों वैल्यूज को, ये वैल्यू 13 और 14 वाली, इनको हमने लैग्रेंज इक्वेशन के अंदर पुट करना है कि वो ये थी कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल एल बाई पार्शियल थीटा इक्वल टू 0। तो इसका है एम एल स्क्वायर थीटा डॉट और इसकी वैल्यू है एम जी एल साइन थीटा, माइनस साइन के साथ यहाँ चूंकि माइनस का साइन है, ये माइनस साइन इस माइनस साइन को प्लस करेगा तो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0 आएगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, उसमें वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ हमने वैल्यू पुट की एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट और माइनस इसकी जगह माइनस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0। अब हम क्योंकि m इसमें भी है, l भी है, इसमें भी है, तो इससे को एम एल स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, यहाँ सिर्फ रह जाएगा थीटा डबल डॉट, यहाँ भी जब डिवाइड करेंगे तो एक और l ऊपर है, l स्क्वायर नीचे है, तो डिवीजन में l जो है बचेगा, तो वी हैव थीटा डबल डॉट प्लस g over l sin theta equal to 0, and this is the equation of motion of the simple pendulum. इन केस आप जानते हैं कि हम जो कहते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मस्ट बी स्मॉल, इसका मतलब ये है कि थीटा must be small. When theta is very very small, in that case sin theta is approximately equal to theta, so that we can replace sin theta by theta. So theta double dot is equal to minus g over L theta. But from Newton mechanics we know that theta double dot is equal to minus omega square theta. ये आपने पहले इक्वेशंस पढ़ी हुई है, ड्राइव की होगी। तो इस इक्वेशन को अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो थीटा डबल डॉट लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे माइनस और थीटा ये दोनों में है, यहाँ जी ओवर एल है इसमें, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है। इट मीन्स कि ओमेगा स्क्वायर को हम जी ओवर एल के इक्वल रख सकते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जी ओवर एल अंडर रूट, यानी दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। और एंगुलर वेलोसिटी और उसके दरमियान टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन है कि t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा टाइम पीरियड। ओमेगा की वैल्यू जी ओवर एल पुट की, तो इसको हम अगर ऊपर लेके जाना चाहें तो ये एल ओवर जी अंडर रूट बनेगा, यानी टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट आता है, जो आप पहले ड्राइव कर चुके हैं यूजिंग न्यूटन मैकेनिक्स। तो आज हमने ये ड्राइव किया है यूजिंग लैग्रेंज मैकेनिक्स।